Hello students, this is second lecture on topic magnetic materials. In today's lecture, let us obtain the expression for magnetic potential energy in external magnetic field and थोड़ा उससे कुछ related terms है वो discuss करते हैं. Diagram में देखो, this is N pole, this is S pole. From N pole, magnetic lines of force start and terminate on S pole. ये जो horizontal lines है, these are the magnetic lines of force. They are parallel and equidistant. They represent uniform magnetic field. Into that uniform magnetic field, ये bar magnet है. This bar magnet का ये N pole है, ये S pole है. 2L is the magnetic length. It is suspended freely to rotate into this magnetic field. So whenever bar magnet is suspended freely into the magnetic field, torque acts on the magnet and it used to rotate. ये rotate होगा. So torque acting on the magnet in uniform magnetic field is given by a formula mb sin theta, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिराइव किया था. ये फॉर्मूला यहाँ पे है, देखो mb sin theta. How it's going to mb sin theta या क्रॉस प्रोडक्ट में m बार क्रॉस b बार, ये टॉर्क एक्ट होगा. ठीक है. अभी हम लोग मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को इंट्रोड्यूस करते हैं. कैसे देखो, अभी एज्यूम करो कि ये मैग्नेट इस डायरेक्शन में अलाइन है, ऐसे. लेट इट इज डिस्प्लेस फ्रॉम दिस पोजीशन थ्रू एन एंगल थीटा, सॉरी थ्रू एन एंगल डी थीटा. अभी इस पोजीशन में अलाइन हो गया. लेट इट इज डिस्प्लेस थ्रू एन एंगल डी थीटा. So in order to displace it through an angle d theta, agent does the work by applying the torque. So that sample work is given by a product of torque and angular displacement. तो ये आ गया dw, sample of work, is equal to what? Torque into d theta. What is the magnitude of torque? Is mb sin theta into d theta. ये हो गया सैंपल ऑफ वर्क डन. अगर आपको टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है तो लेट दैट बार मैग्नेट इज डिस्प्लेस फ्रॉम एंगुलर पोजीशन θ1 टू एंगुलर पोजीशन θ2. मतलब m बार और b बार डायपोल मोमेंट वेक्टर और फील्ड वेक्टर में शुरू में एंगल कितना था? θ1 था. आपने दोनों में जो एंगल θ1 था, इट इज मेड θ2. This is the total work done. So total work done can be found by taking the integration of sample work dw. तो मैंने dw का इंटीग्रेशन लिया. Integration of dw gives me a total work. It is mb sin theta, limit from θ1 to θ2. ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है. mb तो कांस्टेंट है. Integration of sin theta is minus cos theta. Theta varies from θ1 to θ2. Okay. So W is equal to mb cos θ1 minus cos theta. क्या करेगा आप? पहला अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, फिर लोअर लिमिट. तो जब आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक माइनस cos θ2 हो जाएगा. माइनस, जब θ1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस माइनस cos θ1 हो जाएगा, मतलब जाके प्लस हो जाएगा. इसलिए मैंने cos θ1 पहले लिखा है, cos θ2 बाद में लिखा है. So this is the work done in rotating the magnet from angle θ1 to θ2. So this work done is with the magnet in the form of magnetic potential energy. तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी. वही है सेम, mb cos θ2 minus cos θ1. ये हो गया मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या है? एक मार्क के लिए डेफिनेशन आ सकता है. मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी
of a magnetic dipole in magnetic field is work done in rotating the dipole from zero energy position to desired position in the field. अभी zero energy position मतलब the position from where we are about to leave it for rotation, उसको बोलेंगे zero energy position. मैं वापस बोलता हूँ, the position of magnet from where we are about to leave it for rotation is called as zero energy position. जब आप उसको इस पोजीशन से छोड़ोगे तो by the agent what is the work done to rotate it is converted into the energy. That energy is with the rotating magnet in the form of magnetic potential energy. तो ये आप जीरो एनर्जी पोजीशन जो है ये एजेंट डिसाइड कर सकता है. डिसाइडिंग द जीरो एनर पोजीशन आप अलग अलग सिचुएशंस के फॉर्मूला को मॉडिफाई कर सकते हैं. मतलब जीरो एनर्जी पोजीशन का फॉर्मूला बराबर है, कोई भी पोजीशन ले लो जहां से आप मैग्नेट को छोड़ना चाहते हो रोटेशन के लिए, दैट इज द जीरो एनर्जी पोजीशन. फिर आप अलग अलग पोजीशंस फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे पोजीशन वेयर इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, द पोजीशन वेयर इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अब स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब है जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज ए इक्विलिब्रियम पोजीशन. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है नॉन जीरो पोटेंशियल एनर्जी. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है नॉन जीरो पोटेंशियल एनर्जी. तो देखो तीनों सिचुएशन देखते हैं, ये रिपीटेडली देखने का. मैंने क्या दिया है पे देखो, इफ जीरो एनर्जी पोजीशन ऑफ डाइपोल is that it is held perpendicular to the magnetic field. हम लोग जीरो एनर्जी पोजीशन क्या ले रहे हैं कि मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर कंसीडर किया. कर्सर पे ध्यान दो, मतलब मैंने मैग्नेट को ऐसे वर्टिकल पकड़ा तो अपवर्ड ये हो गया डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर m बार, और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड. तो हम लोग एंगल कितना ले रहे हैं शुरू में? एंगल बिटवीन m बार एंड b बार कितना ले रहे हैं? कितना ले रहे हैं ये एंगल नॉर्मली हम लोग θ1 से डिनोट करने वाले, तो एंगल हम लोग ले रहे हैं 90 डिग्री. तो व्हाट इज द जीरो एनर्जी पोजीशन? एंगल बिटवीन m बार एंड b बार इज 90 डिग्री. ये जीरो एनर्जी पोजीशन, ठीक है. ओके, वहां से हम लोगों ने रिलीज किया, तो आफ्टर रिलीज ये मैग्नेट रोटेट होगा and let after rotating it aligns so that angle between m bar and b bar is theta 2, यानी theta. What I told you, theta 1 ये एंगल कब है? theta 1 हो या theta 2 हो, theta 1 या theta 2 both are the angles between m bar and b bar. θ1 को क्या लेने का? फ्रॉम वेयर यू आर अबाउट टू लीव द मैग्नेट फॉर रोटेशन, इसको θ1 लेने का. और रोटेट होने के बाद कुछ एंगल दोनों में अटेन होगा, उसको θ2 लेने का. तो जीरो एनर्जी पोजीशन हम लोग क्या ले रहे हैं कि ये मैग्नेट ऐसे वर्टिकल है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है अलोंग द y एक्सिस, फील्ड है अलोंग द x एक्सिस. तो शुरू में जो एंगल है दोनों में θ1, ये कितना ले रहे हैं हम लोग? 90 डिग्री. ये जीरो एनर्जी पोजीशन. व्हेन इट इज रिलीज तो ये मैग्नेट रोटेट हो क्या एक डायरेक्शन में खुद को अलाइन करेगा. दैट टाइम व्हाट इज द एंगल बिटवीन m बार एंड b बार? वो एंगल हो जाएगा θ2. अभी θ2 कैन हैव एनी वैल्यू, तो मैं उसको थीटा ले रहा हूँ फिलहाल वेरिएबल. तो θ1 को 90 डिग्री सब्सटीट्यूट करो, θ2 को थीटा सब्सटीट्यूट करो, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा mb cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा. cos 90 डिग्री इज 0, तो ये तो गया माइनस mb cos थीटा. ये हो गया मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी
when magnet has zero energy position such that m bar and b bar are perpendicular. तो ये हो गया मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट जब हम लोगों ने जीरो एनर्जी पोजीशन क्या लिया था, such that angle between m bar and b bar was 90 degree. अभी डिफरेंट केसेस लेते हैं, यहाँ देखो, अगर एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, रोटेट करने के बाद एंगल बिटवीन m बार एंड b बार कितना आया, 90 डिग्री आया. अगर रोटेट करने के बाद एंगल बिटवीन m बार एंड b बार 90 डिग्री आया तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, पहले भी वो 90 डिग्री था, अभी भी वो 90 डिग्री है. तो अभी हम लोग क्लियर बोल सकते हैं कि अभी भी वो जीरो एनर्जी पोजीशन पे है, जीरो एनर्जी पोजीशन पे है, क्योंकि पहला 90 था, रोटेट होके वापस एट रेस्ट आया, बट मेकिंग 90 डिग्री एंगल बिटवीन m बार एंड b बार. इसका मतलब जैसे थे हो गया, तो ये जीरो एनर्जी पोजीशन माना. दूसरा, उसको 90 डिग्री से छोड़ा और that magnet come to rest such that angle between m bar and b bar is 0 degree. अगर एंगल बिटवीन m बार एंड b बार 0 डिग्री हो गया होगा तो कैसे रहेगा ये मैग्नेट, ये मैग्नेट ऐसे हॉरिजॉन्टल रहेगा, मैग्नेट का n पोल s की तरफ रहेगा और s पोल n की तरफ रहेगा, मतलब m बार और b बार में एंगल हो जाएगा 0 डिग्री. ये 0 डिग्री सब्स्टिट्यूट करो, cos 0 हो जाएगा 1, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा निगेटिव. मतलब मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी नॉन जीरो है. कितना है, नॉन जीरो है, लेकिन निगेटिव है. मतलब नॉन जीरो है और निगेटिव है, मतलब लेस वैल्यू है. तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, लेकिन अनस्टेबल. इक्विलिब्रियम पोजीशन है, बट इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो रेस्ट में आ गया तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है. So it is in equilibrium position, but in this position it possesses minimum potential energy, क्योंकि माइनस है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है. ठीक है. अगर ये मैग्नेट को हम लोगों ने जीरो एनर्जी पोजीशन से रिलीज किया, ये रोटेट होके एंगल कितना आया दोनों में, 180 डिग्री आया. मतलब कैसे रहेगा सिचुएशन, ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगा राइटवर्ड और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा लेफ्टवर्ड. मतलब ये m बार जो है इधर रहेगा और b बार इधर रहेगा, तो एंगल कितना हो जाएगा दोनों में, 180 डिग्री. सब्स्टिट्यूट करो, cos 180 डिग्री -1, तो ये हो जाएगा प्लस mg. तो देखो पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, पॉजिटिव. पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पॉजिटिव है और नॉन जीरो है, बराबर है. अगर पॉजिटिव है तो ग्रेटर वैल्यू है, तो मैग्नेट इक्विलिब्रियम में तो आ गया, लेकिन इक्विलिब्रियम कैसे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि वो कभी भी उल्टा रिटर्न आ सकता है. वैसे आपको ये डिस्कस करना है. और एक कंडीशन, आपको ये सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन करो प्रिपेयर, क्योंकि दोनों काम आएंगे. मानो मैंने जीरो एनर्जी पोजीशन क्या लिया, θ1 को 0 डिग्री लिया, θ1 को कितना लिया, 0 डिग्री लिया. मतलब ये मैग्नेट शुरू में ही कैसे है, ऐसे हॉरिजॉन्टल. कैसे शुरू में, हॉरिजॉन्टल. तो शुरू में एंगल बिटवीन m बार एंड b बार कितना है, 0 डिग्री है. उसको रिलीज किया तो लेट इट इज रोटेट एन एंगल बिटवीन m बार एंड b बार, नया एंगल कितना आ गया, थीटा आ गया. ये कोई भी हो सकता है, मैंने एक रैंडम वैल्यू दिया. अभी ये सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ θ1 कितना, 0, तो cos 0 हो गया 1, और ये कितना, थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस cos थीटा. ये देखो, ये हो गया मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट व्हेन जीरो एनर्जी पोजीशन इज व्हाट, एंगल बिटवीन m बार एंड b बार इज 0 डिग्री. मीन्स यहाँ 0 डिग्री पोजीशन क्या है, मैग्नेट इज हेल्ड पैरेलल टू द, यहाँ पे था मैग्नेट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द. थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे करना, बाय हार्ट नहीं करना. अभी देखो, पैरेलल मतलब जब एंगल 0 था, जब एंगल 0 था, अगर θ2 भी मैंने 0 ले लिया तो रोटेट होके जैसे थे हो गया, दोनों 0.
रोटेट हुआ लेकिन वापस वैसे हो गया, तो हो गया जीरो एनर्जी पोजीशन। अगर ये एंगल रोटेट होके 90 डिग्री हो गया तो cos 90 डिग्री इज व्हाट, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो गया। अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो इक्विलिब्रियम में तो आ जाएगा, कम टू रेस्ट, बट अनस्टेबल, बिकॉज इवन एट इक्विलिब्रियम इट पॉजेस पोटेंशियल एनर्जी, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर 180 डिग्री से रोटेट हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस माइनस 1 2 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी 2 MB हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी और ज्यादा हो गया, तो ये भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, राइट। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डिस्कस। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, इट पॉजेस द पोटेंशियल एनर्जी बट मिनिमम। जैसे एक मास आपने अर्थ पे रखा, तो अर्थ पे है मास, इट पॉजेस द पोटेंशियल एनर्जी लेकिन कम वैल्यू रहेगा। अगर वही मास हम लोग कुछ हाइट पे लेके गए तो देयर इट पॉजेस मोर पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन रेस्ट में है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, कभी छोड़ दोगे तो नीचे ही आने वाला। सेम पार्ट हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस किया। डायग्राम का लुक अलग था, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी था, मैग्नेटिक डायपोल की जगह इलेक्ट्रिक डायपोल था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जगह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, और अपने अपने सिंबल थे। ये टॉपिक का नोट्स आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे भी दे के रखा है, तो दोनों टॉपिक जब प्रिपेयर करोगे तो साथ में करो। ये देखो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नोट है, तो दोनों टॉपिक एक ही है, खाली एक्टर्स बदले। वहाँ MB है, यहाँ P है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायग्राम का लुक बदला है, तो दोनों प्रिपेयर साथ में करने का, राइट। नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू विद द चैप्टर विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।